Anyhow, very good morning to all of you. I have started the recording with it. Before we start geography chapter, I just want to tell you something about the activities which were sent to you as homework. So let me tell you how to accomplish those activities in your notebook in FAIR Homes, this homework notebook of SS. First activity that was told many days back, this body mass index. Okay? So in that body mass index activity, what you have to do, you have to make use of your colored pencil, then very briefly write the meaning of BMI, then write the formula very briefly. Okay? Then after that, that conclusion या observation कि if your BMI is less equal to 18.5 or more than or less than, whatever is your observation, that you have to write nicely. So this activity, this can be there in the form of a question also. आपको question आ सकता है, what is meant by BMI या how is it calculated? Then you have to write the formula and you have to explain it. I hope you remember the formula: weight in kilograms to be divided by height in meters, square of height in meters. ठीक है? उसके बाद आपने अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी इंडिविजुअल जो भी आपका वेट हाइट है वो उसके अकॉर्डिंग करना है, बट नॉट इन एग्जाम. ठीक है? उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी वाज दैट लिस्ट एनी 4 कंट्रीज. स्टिल स्टूडेंट्स आर कमिंग. List any 4 countries having scarcity of water and second huge reserves of crude oil. ठीक है जी? तो any 4 countries better होगा if you write in descending order. ठीक है? जहां पर सबसे ज्यादा scarcity है, that country should come at number 1, फिर followed by second country, followed by third and fourth country. 4 countries, not no need to write many countries, only 4 are required, and you should learn the names of those countries also. Activity means we have to understand the problem. Why I have selected these 2 points only? Because these two we can say resources, they have been discussed in the chapter na? Water is the example of renewable resource, and jo crude oil hai, that is the example of non renewable resource. That is why these two have been chosen. ऐसे ही huge reserves of crude oil. So there firstly you have to check carefully which countries are having huge resources. तो रिजर्व्स, रिसोर्स तो है ही है, रिजर्व. ठीक है? गल्फ कंट्रीज में से कौन से है या विच कंट्री? मेनली यू विल फाइंड दिस आंसर फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, मिडल ईस्ट कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक. ठीक है? लेट मी शो यू. आई जस्ट गॉट वन मैप आल्सो फॉर यू टू शो हाउ टू सी एंड just a second with it. Yes, you just pay attention to this world map. This is our own country, India. ठीक है? इंडिया के साथ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आफ्टर दैट ईरान, इराक, इधर सारे ये जो कंट्रीज आ जाते हैं ना, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये सारा, कतर, यूएई, सीरिया, ये सारे दीज आर कॉल्ड मिडल ईस्ट कंट्रीज. तो यहाँ पर आपने चेक करना है कि इन विच कंट्री हाईएस्ट दिस रिसोर्सेज, रिजर्व्स ऑफ दिस क्रूड ऑयल आर देयर. ठीक है? After that, last activity was table you have to prepare showing rich and poor countries. Okay? So rich and poor, then tabular form I have already sent. Firstly, you have to write the name of the country, and along with that, in the second column, what are you supposed to do? You have to mention the name of the continent also. जैसे for example, जैसे you select this country, select the name of this USA, America. तो फिर आप कॉन्टिनेंट में यू विल राइट अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट. फिर आप नंबर 2 पे सपोज यू राइट कनाडा, तो फिर उसका कॉन्टिनेंट कौन सा बना? नॉर्थ अमेरिका. उसके बाद आप लेते हो, मान लीजिए फ्रांस आप लेते हो, इधर यूरोप में फ्रांस लेते हो, तो फिर कॉन्टिनेंट कौन सा बना? यूरोप. ठीक है? तो दिस वे यू हैव टू अकम्प्लिश दिस एक्टिविटी. इन द सेम मैनर पुअर कंट्रीज, तो नेम ऑफ द पुअर कंट्री टू बी रिटन. जैसे फॉर एग्जांपल ये मोस्ट ऑफ द पुअर कंट्रीज यू विल फाइंड फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. तो जो भी कंट्री, जैसे ये चाड कंट्री है या ये नाइजर है या कोई भी और लिखते हो जो पुअरेस्ट है. ठीक है? तो वो कंट्री लिख के यू विल राइट अफ्रीका. इफ यू टेक एनी एशियन कंट्री, तो यू विल राइट एशिया. तो आई जस्ट मीन टू से कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये जो कंट्री है, पुअर कंट्री है, दैट इज इन विच कॉन्टिनेंट. ठीक है? अदरवाइज देयर इज नो फन इन हैविंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज. These are meant only to enable us to identify the country on the global scenario कि कौन सा country कहाँ पे है. And if I tell you the conclusion beforehand, you will be surprised to know most of the rich advanced countries or rich countries you will find in this North America and Europe, and that too Western Europe.
और जो पुअर कंट्रीज की आपकी लिस्ट होगी, आप देखोगे मोस्ट ऑफ द पुअर कंट्रीज यू विल फाइंड फ्रॉम अफ्रीका एंड एशिया. दिस इज द कंक्लूजन. ठीक है, एनी हाउ इट इज नॉट टू बी रिटन देयर. Yes, but still students are coming. That just interrupts the flow of the lecture. So in this manner, we have to conclude our activity work. Now let us come to with that our work is over related to our chapter economics development. Okay, and I have already sent you the hints of all the questions, exercise as well as extra question. So you have to expand those points on your own. Expansion means elaboration. Explanation you have to write in your own words. Please don't copy from the book directly. You make sentences in your own words, write short sentences which you can later learn also easily. That type of answer should be there in your notebook. Okay, ji? And after completing, please send the PDF to me as early as possible. Chalo. Now we are going to start today's chapter. Very interesting, very informative, and I am fully sure that you will enjoy the reading and learning and understanding of this chapter. This is resources and development. Okay. So now, firstly, question arises if we pay attention to the title of the chapter. Development. So just now we have completed in economic side also. So firstly, word comes resources. So which thing is known as resource? Which article can be known as a resource? So resource means, in general, we say that whatever is available to us in our environment, okay, that is a resource for us. Natural resource है हमारे लिए. But in order to be a resource, this much quality is not sufficient. ठीक है, एनवायरनमेंट में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, पर क्या वो सारी चीजें हमारे काम में आने वाली हैं? क्या हम उनको यूज करते हैं? या हमारे लिए इन अवर लाइफस्टाइल आर दोस थिंग्स यूजफुल और इम्पोर्टेंट, हमारे काम में आती हैं? आर दे एबल टू फुलफिल अवर नीड्स? आपकी मेरी हमारी जरूरत को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है? वी हैव टू सी दिस थिंग. ठीक है, if those things which are in the environment and they have this capacity to fulfill our needs, हमारी जरूरत को फुलफिल कर रही है, हमारा डिमांड को सेटिस्फाई कर रही है, then that thing will be known as a resource. जो चीजें हमारे काम में नहीं आती हैं या हमारे काम में आने लायक नहीं होती हैं, they will not be considered as a resource. ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि all things in the world they will be used by all the people. ऐसा कुछ नहीं होता. Many times if we pay attention to the variety of people in the world and variety of professions which are being done by या practiced by the people, तो क्या होता है, कई चीजें किसी और लोगों के काम की हैं, कोई चीजें किसी और लोगों के काम की हैं, तो वो सारी रिसोर्स ही हैं. जैसे इफ आई गिव यू वन एग्जांपल, जैसे ट्रैक्टर है. ठीक है, तो ट्रैक्टर इज ए रिसोर्स फॉर ए फार्मर, उसके काम में आता है, दैट इज ए रिसोर्स, यूजफुल थिंग है. बट क्या वो ट्रैक्टर एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर हमारे काम में आने वाली कोई चीज है? वो नहीं है. हम लोग थोड़ी ट्रैक्टर यूज करते हैं, हमारे लिए नहीं है. बट दैट सेम मशीन विच इज कॉल्ड ट्रैक्टर, दैट इज यूजफुल फॉर समवन एल्स, एंड हु इज दैट समवन? दैट इज ए फार्मर. तो उसके लिए काम में आती है. आपके और मेरे काम में आने वाला रिसोर्स कौन सा है? अभी प्रेजेंटली व्हाटएवर इज देयर इन अवर हैंड्स, मोबाइल इज देयर, लैपटॉप इज देयर, our book, notebook, pen, pencil. ठीक है, all these things are a kind of resource for us. So in nutshell we can define, you can underline also कि क्या है ये? Everything available in very first para of the chapter, it is written here, which can everything available in the environment which can be used to satisfy our needs, provided means conditionally, कि भी ये तो होना ही चाहिए. In addition to this, something else is also required. And what is that something else? It should be technologically accessible. टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्स है उसको एक्सट्रैक्ट करने की जो टेक्निक है वो हमारे पास होनी चाहिए. जैसे अभी हमने लास्ट चैप्टर में एग्जांपल किया क्रूड ऑयल का, तो क्रूड ऑयल इज फाउंड बिलो द अर्थ, अंडरग्राउंड हमें मिलता है. तो कोई मशीनरी होगी, कोई टूल्स होंगे, कोई इक्विपमेंट होगी उस ऑयल को निकालने की, तो उस तभी वो हमारे लिए काम में आने वाली चीज है. अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है पेट्रोलियम को निकालने के लिए, क्रूड ऑयल को निकालने के लिए मशीनें ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो क्रूड ऑयल हमारे काम में आता है, पेट्रोलियम हमारे काम में आता है? वो नहीं आ सकता. तो पहला ये कंडीशन है कि हमारे पास उस चीज को निकालने के लिए
क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. टेक्नोलॉजी मीन्स मशीनें होनी चाहिए, इक्विपमेंट होनी चाहिए. वी शुड हैव टूल्स विच आर रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट दैट मिनरल या वट एवर मिनरल है या कुछ भी है, रिसोर्स है, तो वो हमारे पास दैट टेक्निक शुड बी अवेलेबल. देन सेकेंडली इकोनॉमिकली फिजिबल. फिजिबल का मतलब होता है सूटेबल, कि वो उसके ऊपर जो खर्च हो रहा है उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के ऊपर, वो दैट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी विद इन अवर रीच, बियॉन्ड अवर कैपेसिटी, बियॉन्ड अवर रीच. अगर खर्चा चला जाता है, हमारा एक्सपेंडिचर होता है उस रिसोर्स को निकालने के लिए, तो देन देयर इज नो यूज ऑफ दैट रिसोर्स. अब जैसे फॉर एग्जांपल कहें कि जैसे हम कह सकते हैं ओशन में कई बार अंडरग्राउंड वहां पे क्रूड ऑयल के चांसेस है कि वहां से क्रूड ऑयल निकल सकता है. बट आप देखो ओशन में से पेट्रोलियम को या क्रूड ऑयल को निकालने के लिए कितनी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड, मशीन्स आर रिक्वायर्ड, और किसी कंट्री के पास उतना मनी ही नहीं है. दैट कंट्री इज एनी पुअर कंट्री है, तो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जैसे, तो दे आर अनएबल टू मेक यूज ऑफ एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी. दे डोंट हैव मनी, दे डोंट हैव कैपिटल विद देम. तो इसका मतलब वो पैसों की कमी के करके दे वोंट बी एबल टू यूज दैट रिसोर्स. तो फिर रिसोर्स कब बनेगा? जब किसी के पास उसको खरीदने की या उसको यूज करने की या निकालने के लिए पैसे भी हो. इकोनॉमिकली का मतलब फाइनेंशियली भी उस मशीनरी के ऊपर खर्चा करने लायक तो कंट्री के पास मनी हो, तो ही वो काम में आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकता. ठीक है. एंड लास्ट वन इज कल्चरली एक्सेप्टेबल. कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है एज पर अवर नेचुरल कंडीशंस, एज पर अवर नेचुरल एनवायरनमेंट, we should be able to make use of that technology. जैसे हम कहें कि we people living in पंजाब, आप मैं हम सारे पंजाब के हैं, तो पंजाब में जो भी जिस तरह का यहाँ का कल्चर है, जिस तरह का यहाँ का रहन सहन, कल्चर होता है वे ऑफ लिविंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल. हम सारे विद वेरी लेस वेरिएशंस, हम सब जो पंजाब के रहने वाले हैं, हम सबका तौर तरीका ऑलमोस्ट एक जैसा ही है ना. लैंग्वेज एक है, हमारे जो फोक सॉन्ग्स है वो एक जैसे हैं, हमारा घरों का रहन सहन एक जैसा है आमतौर पे नॉर्मली. तो फिर हमारे वो जो भी हम चीज को यूज कर रहे हैं, रिसोर्स है, वो दैट शुड बी एबल टू बी यूटिलाइज्ड इन अवर गिवन नेचुरल सराउंडिंग्स. कल्चरली ऑल पीपल शुड बी एबल टू मेक यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट, जो भी है वट एवर. ठीक. तो हम सबके काम में हमारी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग वो सूटेबल होना चाहिए, सीधे सीधे वर्ड्स में ये. ठीक. तो जो भी प्रोडक्ट हमारी ये सब चीजों को पूरा करता है, सब इन कंडीशंस को फुलफिल करता है, दैट कमोडिटी, दैट आइटम, दैट थिंग विल बी नोन एज ए रिसोर्स. ठीक. अच्छा, नाउ यू कैन सी हियर ये वन ट्रायंगुलर टाइप डायग्राम इज गिवन. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब नेचर, कि पहले तो नेचर में मिलना चाहिए. फिर यहाँ लिखा है ह्यूमन बींग्स, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर द की सोर्स. Who is going to make use of all these things? Who is going to extract all these things? Who is going to apply the technology on the nature? That key factor is human beings. You think for a while, if there is no human population on this planet, ठीक है, तो नेचर में तो देयर विल बी रिवर्स, देयर विल बी माउंटेन्स, देयर विल बी ओशंस, देयर विल बी मेनी मिनरल्स ऑन दिस अर्थ, बट आर दे ऑफ एनी यूज? No, they are not at all of any use. Why? Because the people who are required to utilize those things, those people are missing. लोगों के बिना सारी चीजें पैसिव चीजें हैं. ह्यूमन बींग्स आर द एक्टिव फैक्टर्स. तो हमेशा ही एक्टिव फैक्टर ही जो होता है वही नॉन लिविंग चीजों की या पैसिव चीजों की यूटिलाइजेशन करता है. आप इसको ऐसे समझो, आपके हाथ में पेन है ना, तो आप पेन उठा के लिखोगे तो ही पेन से लिखा जा सकता है. पेन नहीं आपको कहेगा कि मुझे उठाओ, या पेन अपने आप चल के आपके हाथ में नहीं आएगा, है ना. तो इसका मतलब आप इम्पोर्टेंट हो, पेन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. पेन की यूटिलाइजेशन तभी है जब आपके माइंड में आता है कि नाउ आई हैव टू राइट, तो आई नीड ए पेन या पेंसिल. तो देन योर माइंड गिव्स कमांड टू योर हैंड, देन यू पिक अप द पेन एंड स्टार्ट राइटिंग. जो भी आपने काम करना है, यू डू दैट, isn't it? ठीक है. तो ह्यूमन बींग्स, बिकॉज दे आर द सेंट्रल फिगर, दैट इज व्हाई दे हैव बीन मेंशन्ड हियर, शोन हियर. फिर और क्या है? टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो भी मैंने बताया. इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल. भाई अगर हमारे पास टेक्निक है, हमें पता है रिसोर्सेज हैं, तो हु आर गोइंग टू यूज देम? इंस्टीट्यूशन मीन्स अ सिंगल इंडिविजुअल पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग. एक होता है इंडिविजुअल, एक होते हैं इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. तो जो human being है, individual human being, he is unable to do or to make use of anything in the absence of any other companions. आप अकेले कहो, इमेजिन ए सिचुएशन, इस पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ के ऊपर आप अकेले ही हो या मैं अकेली हूँ,
तो क्या हम सारा कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वी नीड कंपनी ऑफ अवर अदर पीपल, है ना, फैमिली हो या कंट्री हो, लोग हो आसपास। जब बहुत सारे लोग होते हैं तभी रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन हो सकती है, अकेला आदमी नहीं कुछ भी कर सकता। तो दैट इज फॉर दैट पर्पस द वर्ड टर्म इज यूज्ड। इंस्टीट्यूशंस मींस ह्यूमन बींग्स मिलके कोई कंपनी बना लेते हैं, कोई ग्रुप बना लेते हैं, कोई अपनी फर्म बना लेते हैं, कोई अपना प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी जो काम करते हैं मिलजुल के करते हैं। सीधे सीधे वर्ड्स में ये मतलब है इसका, ठीक है। सो resources are the utility things, useful things. Now here you can see this flow chart that you can see later also. Two types के resources होते हैं, one is natural जो हमें nature से मिलते हैं, and one is human. I hope you remember in 8th class you have read about this human resources, ठीक है। तो वही है human resources, मतलब we skilled people, जिनको जिनको कोई काम आता है, जो पढ़े लिखे हैं, जो किसी काम को करने की एबिलिटी रखते हैं, एंड दैट वर्क इज इम्पोर्टेंट फॉर अदर्स ऑल्सो, यूजफुल फॉर अदर्स ऑल्सो। तो वो रिसोर्स क्या कहलाता है हमारे एसएस में? दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो नेचुरल में ये आगे आप देख ही लोगे, रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल, दैट आई शो यू लेटर ऑल्सो। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दीज लाइन्स। सो यहाँ हियर यू कैन अंडरलाइन ऑल्सो, इट इज गिवन resources are a function of human activities. मतलब इस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑल पीपल थिंक कि जो रिसोर्सेज है दे आर गिवन टू अस बाय नेचर, है ना, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, भगवान ने दे दिए, चलो जो मर्जी करो। वाटर इज गिवन बाय नेचर, जैसे मर्जी वेस्ट करो, है ना। एयर है तो भगवान ने दी हुई है, भगवान मतलब नेचर हैज गिवन, उसको पोल्यूट कर दो, फैक्ट्रीज का स्मोक एमिट कर दो, ट्रैफिक का इतना सारा स्मोक एमिट कर दो, मशीन चला दो, नॉइज पोल्यूशन कर दो, है ना। हमें लगता है फ्री में मिला हुआ है, but in reality these things are not provided to us in free. क्या है ये? resources are a function of human activity, means human beings, we people, हम सारे ही लोग, सारे का मतलब हम आसपास हमारे जितने लोग हैं कंट्री में, वर्ल्ड में, सारे ही लोग मिलके कुछ काम करते हैं in order to make those gifts of nature useful for us, ठीक। उस नेचर को अपने काम में लाने लायक जो एफर्ट्स है वो सारे लोगों की एक्टिविटीज के करके होता है, अपने आप पैसिवली कुछ नहीं हो पाता है, ठीक। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन जो आगे दिया हुआ ना, ये दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। अच्छा, आई गिव यू वन एग्जांपल। जैसे आई एम सिटिंग ऑन ए बेंच, आप यू आर सिटिंग ऑन ए सोफा या चेयर या बेड के ऊपर बैठे हो, फर्नीचर है ना, ऑल दीज आर्टिकल्स, ऑल दीज आर नोन एज फर्नीचर आर्टिकल्स, ठीक, वुड के बने हुए हैं। तो अब अगर नेचुरल फॉर्म में देखिए तो वुड, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस वुड? फ्रॉम द ट्रीज, फॉरेस्ट में ट्रीज हैं तो फ्रॉम देयर वी गेट दिस, ठीक। बट आप सोचो, तो क्या हम ट्रीज के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं कि भाई वुड है तो अपने अपने ट्री के ऊपर चढ़ जाओ, ये नेचुरल सोर्स है? नो, वट डू वी डू? वी कट दैट, कट दोज ट्रीज, उसको वुड को लाते हैं, उसको उसकी फिनिशिंग करते हैं, उसको डिजाइन देते हैं, उसी वुड से टेबल भी बनता है, उसी वुड से चेयर भी बनती है, उसी वुड से पेंसिल भी बनती है, उसी वुड से बेड भी बनता है। सो मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ दैट वुड। तो वो जो एफर्ट किया है टू कन्वर्ट दैट वुड इनटू चेयर, इनटू टेबल, इनटू बेड, इनटू सोफा, इनटू एनीथिंग, ठीक। तो वो जो एफर्ट है दैट हैज बीन डन बाय ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि किसी चीज को कन्वर्ट करना, रॉ फॉर्म को कन्वर्ट करके कुछ यूजफुल चीज बनाना। व्हाई? बिकॉज आफ्टर adding that importance, adding that making that transformation, only then that things becomes important, that thing becomes important for us. ट्री के ऊपर लगी हुई वुड हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उस वुड को डिजाइन देके चेयर बना के यूज करना वो हमारे काम में आने वाली चीज है। तो हम चेयर को कहेंगे रिसोर्स है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो देन हियर यू कैन टिक मार्क, आगे दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। 4 टाइप्स कैन बी देयर on the basis of origin, then exhaustibility, ownership, and on the basis of status of development. One by one, so please tick mark. You can be asked here for 1 mark type question. What are the various bases? So basis should be learned by you. Let us come. कि क्या होता है ये basis? Just a minute. Picture is not very clear, but I request you to look at your own books. So first is on the basis of origin. Origin का मतलब होता है from where do we get that product? कहाँ से हमें ओरिजिनल सोर्स कौन सा है? तो on the basis of origin, 2 types of resources can be there. Let me show you one slide also. I got one for you yesterday only. Yes, see this. Yes.
So in 8th class also, or in science also, you have read two types of resources are there on the basis of region. One is called biotic and other one is called abiotic. Okay? तो जो biotic होते हैं वो कौन से होते हैं? Biotic का मतलब living, जो you can underline also, they are obtained from biosphere and they have life. जो living होते हैं, जिनमें life होती है, वो कौन से आ जाते हैं? You can see these example, plants है, animals हैं, ये सारा pics have been shown here, bacteria है, fungi है, ये सारे, ठीक? तो ये सारे क्या है? दे शो द सिम्टम्स ऑफ ग्रोथ. हम लिविंग बीइंग किसको कहते हैं? आपने साइंस में भी पढ़ा होगा. तो जिस चीज में ग्रोथ होती है, जो बढ़ती है, उसी को हम लिविंग बीइंग कहते हैं. तो बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिसमें ग्रोथ होती है, लाइफ होती है. On the other side, these are the examples of abiotic resources. You can underline all those things which are composed of non-living things. Non-living, जो बढ़ती नहीं है, जो जैसे ही वैसे ही रहती हैं, ठीक? तो उसके कौन से एग्जांपल्स हैं? वाटर है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, एयर है, ये सारे एग्जांपल्स हैव बीन शोन हियर. तो जो चीजें में लाइफ नहीं होती, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ एबायोटिक. ठीक, इसका बस इतना सही है. 1 mark में दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ एग्जांपल कैन बी गिवन. यू मे बी आस्क्ड कि आइडेंटिफाई कि इज दिस रिसोर्स एबायोटिक और एबायोटिक. वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जॉस्टिबिलिटी. तो यू वुड हैव हर्ड वन वर्ड, एग्जॉस्ट. मेनी टाइम्स वी से कि आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, बड़ी बार बोलते हैं, स्पेशली इन समर्स. और व्हेन यू प्ले दिस, कोई आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है एंड यू पार्टिसिपेट इन दैट, आफ्टर पार्टिसिपेशन यू फील वेरी टायर्ड एंड देन यू से, मेनी टाइम्स मेनी स्टूडेंट्स से, आई एम वेरी एग्जॉस्टेड, बहुत थक गया हूँ मैं, है ना, टायर्ड, बहुत थक गया. तो ह्यूमन बीइंग के लिए तो थक गया वर्ड हो गया, बट अदरवाइज उसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लॉजिकली देखें तो दैट मीन्स अवर एनर्जी हैज गॉट लॉस्ट. हमारी जो ताकत थी वो खत्म हो गई है इतना पार्टिसिपेट करने के बाद. थी. तो यहाँ पर एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है खत्म हो जाना, एंड हो जाना, टू कम टू एन एंड, राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन बी देयर, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. Again, this is the repetition of your 8th class chapter. So I am not going to devote much time because you all know the meanings of these terms very nicely. So renewable resources कौन से होते हैं? Which can be renewed or which can get reproduced by any of the processes. जिसकी दोबारा से रिप्रोडक्शन हो जाती है, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस से हो, मैकेनिकल प्रोसेस से हो, या क्या दिया हुआ है, केमिकल प्रोसेस से. ठीक है. If you find these words difficult, no problem, you can skip. You can directly say those resources which get automatically renewed, अपने आप से बन जाते हैं दोबारा से, and which get reproduced, दोबारा से उनकी प्रोडक्शन हो जाती है. तो those resources are renewable. and जैसे you can see here, ये सन है, सोलर एनर्जी है, बायोमास जो ट्रीज से, लीव से मिलती है. ठीक है. ये हाइड्रो पावर वाटर से जो मिलती है, ये जियोथर्मल जो अर्थ के नीचे से एनर्जी निकलती है. कोई स्प्रिंग भी निकल सकते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, वोल्केनोज इरप्ट होते हैं, तो वो भी क्या है, अंदर अर्थ के अंदर की हीट की एनर्जी ही बाहर आती है ना. तो ऐसे ही विंड एनर्जी है. तो ये सारी चीजें अपने आप ही रिन्यू होती रहती हैं विद नेचुरल प्रोसेसेस. इसके लिए वी ह्यूमन बीइंग्स डोंट हैव टू मेक एनी स्पेशल एफर्ट, कुछ खास करना नहीं पड़ता है. ये अपने आप से नेचुरल तरीके से दीज गेट रिन्यूड. तो इस करके दे आर कॉल्ड एज, या एनर्जी लिखा है, नो प्रॉब्लम, वी कैन मेंशन हियर रिन्यूएबल सोर्सेज आल्सो. ठीक. तो नेक्स्ट है हमारा दिस नॉन रिन्यूएबल. जस्ट अ मिनट. यस, here we can see the comparison. Non renewable कौन से होते हैं? which do not get renewed in short period of time. They take millions of years. Earlier also in the last chapter we have done, millions of years are required for their replenishment, and in our normal human lifespan we are unable to see them getting replenished. हम नहीं देख पाते हैं कि कोयला यूज किया तो नया कोयला बन गया, अपने जीते जी नहीं देख पाते हैं ना. तो ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल, बिकॉज दे कैन नॉट बी, एंड सम ऑफ दीज कैन गेट रिसाइकल्ड, and some of these non renewables, they do not get recycled. तो जैसे मेटल्स होती हैं, मिनरल्स, यहाँ से आप देख सकते हो मिनरल्स कई होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स, तो उसकी तो रिसाइकलिंग हो सकती है. बट जैसे ये कोल है या फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती. तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कि वो किस टाइप का है. कुछ को रिसाइकल किया जा सकता है. रिसाइकल मीन्स वी कैन यूज देम अगेन एंड अगेन बाय चेंजिंग देयर शेप. But some of the resources non-renewable, they cannot be used again and again. ठीक है. चलो, now coming to the third, अभी हमने क्या किया? We have done 2 points.
Yes. अभी हमने किया one on the basis of origin, second we have discussed on the basis of exhaustibility, कौन से होते हैं, renewable and non renewable. Now coming to the third one, on the basis of ownership. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है and very easy. तो on the basis of ownership four type के resources can be. ठीक, we have to learn their names, कौन से होते हैं, which are those. First is individual resource, second is community owned resources, third is national resources, fourth one is international resources. So let us start with the individual resources. ठीक है, तो simple words में definition is individual resources means which are owned by individual persons. Those resources which are owned by, OWNED, जिसका मालिक कोई एक इंडिविजुअल होता है उसको कह देते हैं इंडिविजुअल. तो वो क्या होता है, क्यों इंडिविजुअल होता है, बिकॉज इंडिविजुअल पर्सन हैज स्पेंट मनी टू परचेज दैट रिसोर्स, इस करके वो उसका मालिक होता है. जैसे अभी आप मान लो लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो यू हैव परचेज्ड लैपटॉप, तो दैट मीन्स दैट लैपटॉप इज ए यूजफुल थिंग, आपके काम में आने वाली चीज है. ठीक है, पहले तो यही याद रखना है आपने, रिसोर्स का मतलब काम में आने वाली चीज. तो इंडिविजुअल रिसोर्स क्यों है वो, बिकॉज उस लैपटॉप को, इन ऑर्डर टू परचेज दैट लैपटॉप यू हैव स्पेंट मनी फ्रॉम योर ओन पॉकेट, आपने अपना मनी स्पेंड किया है, पड़ोसियों का नहीं किया. तो इस करके फिर वो क्या रिसोर्स है, आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है. सिमिलरली योर होम, योर पेरेंट्स हैव स्पेंट मनी ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट होम, या बॉट बाय किया है किसी से, जो भी है, बट यू हैव, योर फैमिली हैज स्पेंट मनी, तो दैट होम इज योर इंडिविजुअल रिसोर्स. सिमिलरली कार, आपके पास जो कार है, व्हीकल है, वो आपका अपना है, पर्सनल है. क्यों पर्सनल बोलते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर अपने पैसे खर्च किए होते हैं, तो इस करके वो हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स है. सिमिलरली योर बुक्स, दे आर योर इंडिविजुअल रिसोर्स. योर साइकिल इंडिविजुअल रिसोर्स है, आपका अपना कुछ भी, सीधे वर्ड्स में, anything which you have purchased by making use of your own money, that is your individual resource, right? अच्छा, now coming to community owned resources. अब community होते हैं many people, the people who are living there with us in our society, in our locality, वो सारे ही हमारे लिए community हैं. ठीक है, see our जो we can say smallest unit of grouping of human beings, that starts from family, है ना. फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर, जितने भी हैं, वो हमारा एक न्यूक्लियस है, जिसको बोल सकते हैं साइंटिफिक टर्म्स, न्यूक्लियस है. तो फैमिली में कितना होता है, मोर देन 1 मेंबर हो तभी फैमिली बोलते हैं ना. अकेला ही आदमी हो एक घर में, तो वो तो फिर इंडिविजुअल ही रहेगा. 2 जने हो, 3 हो, 4 हो, जितने मर्जी हो, तो उसको फैमिली. ऐसे ही फैमिली फिर एक घर होता है, फिर ऐसे ही आपके आसपास और घर भी होते हैं, वहां पर भी लोग रहते हैं, और भी आसपास होते हैं, आपका अपना लोकेलिटी, लोकेलिटी के बाद आके आपके कोई नेबरहुड की लोकेलिटी, फिर कोई टाउन बनता है, सिटी बनता है, फिर स्टेट बनती है, फिर कंट्री बनता है ना. तो यहाँ पर कम्युनिटी का मतलब जो आपके आसपास के लोग हैं. तो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज मींस विच आर दोस रिसोर्सेज विच आर, क्या लिखा है, यू कैन अंडरलाइन, एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, मींस दोस रिसोर्सेज विच ऑन विच right is observed by all the people of the community. All people can make use of those. वो किसी इंडिविजुअल का नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके लोकेलिटी में देयर इज फॉर एग्जांपल सम पार्क इज देयर, है ना. इन द इवनिंग ऑल चिल्ड्रन ऑफ द नियर बाय हाउसेज दे कम देयर, प्ले देयर, एंजॉय देयर. तो आप ये नहीं कह सकते ये पार्क मेरा है, चलो सारे भागो यहाँ से, सारे बच्चों को निकाल दो. यू कांट से दिस. व्हाई, बिकॉज दैट पार्क बिलोंग्स टू होल ऑफ द कम्युनिटी, सभी का है वो, सबका उसके ऊपर इक्वल राइट है, आपका अकेले का नहीं है. ठीक, ऐसे ही जो बरियल ग्राउंड्स होते हैं, या जहाँ बरियल ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे जिसको हम बोल देते हैं शमशान बोलते हैं, शमशान घाट, क्या बोलते हैं उसको, अंतिम संस्कार करते हैं, या जो क्रिश्चियंस होते हैं, मुस्लिम्स, वो कब्र होती है उनकी, तो जहाँ जो भी बरियल ग्राउंड्स है, जहाँ भी फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड, तो वो क्या होता है, वो भी सभी के, वो किसी एक का अकेले का नहीं होता है. ऐसे ही जो टेम्पल्स हैं, गुरुद्वाराज हैं, वो भी सारी लोकेलिटी के होते हैं, सब कम्युनिटी के होते हैं, सब आ जा सकते हैं वहाँ पे. पार्क हो गया, कोई हमारा पिकनिक स्पॉट्स हो गए, ये सारी ऐसी जगह जो होती है, दे आर यूज्ड बाय ऑल द पीपल, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज, क्या हो गए, कम्युनिटी ओन्ड. ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, कौन सा है हमारा, नेशनल रिसोर्स. तो नेशनल वर्ड कम्स फ्रॉम नेशन. तो if we have to define it directly in simple words, what can we say? National resources means all those resources which belong to a nation. I repeat, those resources which belong to a nation. तो फिर क्या होगा उसका मतलब, नेशन में तो एवरीथिंग कम्स. सोच के देखो, तो नेशन में तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स भी नेशन में ही आ जाते हैं. आपका घर, मेरा घर, हम सबका जो घर है, लोकेलिटी है, कम्युनिटी मतलब लोकेलिटी है,
वो भी तो सारे नेशन में ही है, पंजाब भी नेशन में ही है, इंडिया में ही है, तो सारी जगह ही इंडिया में है। तो इसका मतलब basically, as a matter of fact, all the resources which are there in any country, in any nation, they belong to the government of that nation. That means in case if there is any requirement, any need is there, so then government of the country can acquire those resources, and no individual person, no person in the country, he or she can refuse to provide that resource to the government, because the effort of the government is for the benefit of the majority of people. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई फार्मर हो, तो बहुत बड़ा फार्म है आपका, अब नाउ गवर्नमेंट डिसाइड्स टू कंस्ट्रक्ट वन हाईवे, और वो हाईवे की जब वो कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं कि कहाँ से निकलेगा, इतनी विड्थ होगी, तो मान लो आपका जो फार्म है, सम लैंड ऑफ योर फार्म कम्स अंडर दैट हाईवे, उसके बीच में आ रही है, तो देन गवर्नमेंट विल एक्वायर दैट लैंड फ्रॉम यू। एक्वायर मतलब आपसे ले लेगी, आपको कंपनसेशन विल बी गिवन, फ्री में नहीं, यू विल बी गिवन कंपनसेशन, आपको पैसे दिए जाएंगे मार्केट रेट के ऊपर, बट दैट लैंड विल बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। रीजन क्या है? बिकॉज वहां पे रोड बनानी है, हाईवे बनाना है, एंड दैट हाईवे इज यूजफुल फॉर ऑल द पीपल। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं नहीं अपनी लैंड दूंगा, वो आपको देनी ही पड़ेगी। लीगली यू आर सपोज्ड टू प्रोवाइड दैट रिसोर्स टू द गवर्नमेंट। ठीक, तो in that regard, what can we say? All the resources, whether owned by any individual or owned by any community या family, कुछ भी, anything, everything belongs to the government of the country या government of the nation, वो उनका ही है। ठीक, तो ये हो गए हमारे नेशनल रिसोर्सेज। इसका मतलब सिर्फ नहीं ये कि नेशनल रिसोर्स हमारी पार्लियामेंट है जी, नेशनल रिसोर्स लाल किला है, नेशनल रिसोर्स गेटवे ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं। कंट्री के अंदर जो कुछ भी है वो सारे का सारा नेशनल रिसोर्स है, राइट। नाउ आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब ये क्या होता है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज होता है, देयर इज वन टर्म इन द नेशनल रिसोर्स हैज कम, 12 नॉटिकल माइल्स करके एक वर्ड आया हुआ है, दैट आई शो यू वन दिस स्लाइड आल्सो, अभी बताती हूँ उसका मीनिंग क्या है। लेट अस कम टू फर्स्टली दिस इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब होता है दोज रिसोर्सेज which are regulated by international institutions, means those resources over which all the international institutions they have the right, मतलब वो चीजें जिसके ऊपर सब लोगों का, सब कंट्रीज का राइट है। तो अब आप ध्यान से सोच के बताइए, ऑब्जर्व करिए केयरफुली कि ऐसी कौन सी चीज हो जाती है जिसके ऊपर सबका राइट हो और कोई मना नहीं कर सकता। तो वो क्या होता है? अब क्या है कंट्री का, व्हेन यू सी द मैप ऑफ एनी कंट्री, तो क्या होता है, हाउ डू वी डिफाइन कंट्री? मतलब एक पॉलिटिकल बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तो वो जितनी बाउंड्री है वो तो किसी कंट्री की अपनी लैंड हो गई। तो ऐसे सारे कंट्रीज हैं, ऑब्वियसली जमीन के ऊपर ही होते हैं। मैनी आर आइलैंड टाइप ऑफ कंट्रीज, तो आइलैंड्स ओशन में होते हैं, बट है तो लोग तो जमीन पे ही रहते हैं ना। तो जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है मेनली इसमें आ जाते हैं ओशंस, जो समुंदर होते हैं, ओशंस होते हैं, वो कहलाते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब उन ओशंस के ऊपर देयर इज इक्वल राइट ऑफ ऑल द कंट्रीज, ठीक, बट इक्वल राइट ऑफ ऑल द कंट्रीज सभी ओशन के सब पार्ट्स में नहीं होते हैं। थोड़ा सा जो पार्ट ऑफ ओशन होता है दैट बिलोंग्स टू द कंट्री with which it is making some coast। जैसे लेट मी शो यू द स्लाइड, यहाँ पर ही आपका ये पॉइंट भी विल आल्सो बिकम क्लियर, ये 12 नॉटिकल माइल वाला ना, दिस एक्सप्लेनेशन विल आल्सो कम हियर। जस्ट अ सेकंड, लेट मी शो यू। यस, ये देखो, अब ये देखो आप ध्यान से, यहाँ से लेके द एरिया, ये अपर पार्ट ऑफ द कंट्री, ये नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न ऊपर वाला पार्ट है जो, ठीक है, ये सारा क्या है, दिस इज लैंड लॉक्ड एरिया। इसके इधर भी दूसरा कंट्री है, उसकी लैंड है, ऊपर नीचे ये सब लैंड लॉक्ड एरिया है। यहाँ पर कोई ओशन नहीं पड़ता है। हम पंजाब में है, हरियाणा में है, तो हमारे आसपास तो नहीं है ना अरेबियन ओशन, इंडियन ओशन हमारे घर के पास तो नहीं है। हम लोग लैंड लॉक्ड एरिया में रह रहे हैं, जमीन ही जमीन है आसपास, ठीक। बट व्हेन वी कम टू दिस लोअर पार्ट ऑफ अवर कंट्री, ये सदर्न साइड पे आते हैं, तो क्या हम देखते हैं, ये कोस्ट बन रहा है। कोस्ट मतलब जहाँ सी और लैंड मिलती है, तो उस एरिया को कोस्ट कह देते हैं। इधर है अरेबियन ओशन, इधर है बे ऑफ बंगाल, और नीचे जाए तो वहां पे है क्या है, इंडियन ओशन, ठीक। तो ये जो कोस्ट लाइन होती है, ठीक, इससे यहाँ ओशन के अंदर आते आते, ये देखो इधर 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, जो पानी होता है ओशन का,
उसके ऊपर जिस कंट्री के साथ ये कोस्ट लग रहा है, दैट इज द राइट ऑफ, दैट इज द वी कैन से दिस कंट्री इज द ओनर ऑफ दैट पार्ट ऑफ द सी। तो अब ये कितना, जैसे ये देखो यहाँ पे एग्जांपल बनाया हुआ है, ये ऐसा नहीं कि दिस एग्जांपल इज फॉर दिस साइड ओनली, ये इधर भी अप्लाई होता है, इधर नीचे भी सब जगह अप्लाई होता है कोस्ट के ऊपर। तो हमारा जो बॉर्डर लाइन है, कोस्ट लाइन है, वहां से लेके नॉटिकल माइल होता है एक वी कैन से टर्म टू मेजर द डिस्टेंस इन द एयर एंड इन द वाटर। जो एक नॉर्मल हम डिस्टेंस लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर मेजर करते हैं, उसको किलोमीटर्स में, माइल्स में, मीटर्स में, किसी भी तरह से उसको माप सकते हैं। बट जो पानी होता है, ओशन होता है या एयर होती है, उसमें हमारे ये जो रूटीन लैंड वाले किलोमीटर है वो नहीं चलते। उसके लिए सम स्पेसिफिक टर्म हैज बीन डेवलप्ड बाय द रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट्स, जो जो जियो साइंटिस्ट हैं। तो वो क्या है, नॉटिकल माइल। तो अब जो एक नॉटिकल माइल होती है, इधर इट इज रिटन हियर 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स,